Hello friends, so I welcome you back to the SJ channel. This is your mentor for mathematics, Sambhav here, and in today's video we are going to solve a problem. This is a matrix match, this is a matrix match type problem, and this is from the chapter conic section and section parabola. This is a very interesting problem, not from the perspective that this problem is a difficult problem, but yes, this problem will teach you some important concepts and you guys will appreciate what actually has been asked in this problem. So without further delay, I think we can start. So first, we have been given that P is a parabola, y square is equal to 4x. So for a coordinate geometry question, we have been given that P is a parabola, y square is equal to 4x. Now we'll first of all, we'll do nothing but draw it. So let me draw my axes for the same. Let's say this is my axis and let me draw a parabola. I'll draw the parabola in green. Yeah. So let's say that this is my parabola. Okay. Now we have been given 2 points A and B on the parabola. So the points are a t1 square comma 2a t1. So let me say that this point A lies over here. Okay. And let's say this point lies over here. Of course, these points will lie on the parabola because it has been specified that they are on 2 points on the parabola. Else as well, you can say that y square is equal to 4x has 2 points as its general point as 80 square comma 280, जिसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड यही है कि हाँ, अगर हम t में कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो वो पैराबोला पे लाई करे. This is a general point on the parabola, so the first concept of general point must be very clear to you. So we have this point. Let's say, okay, so first question, the question that is asked, that AB is a focal chord. So I will join A and B. Now I'll join A and B and I'll find the condition. So I'll find the condition for this AB to be a focal chord. I'll derive the condition for focal chord. So focal chord is simple as that, a chord that passes through focus. Okay, and the focus for this parabola lies on its axis. And what is its axis? The x-axis. Here we have x-axis and y-axis, and the x-axis is the axis of this parabola, standard parabola y square is equal to 4ax. तो मुझे पता है कि ये वाला पॉइंट होगा भाई a, 0, यहाँ वाला जो मतलब एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन है इस फोकल कॉर्ड का, this will be a, 0. Now I have to derive a relation between t1 and t2 so that I can make AB as my focal chord. So let's try with that. So okay, so what we have actually, we have, let's say that this point is S because we generally denoted by S. So in the slope of, so my concept that I'll apply is that my slope of AS will be equal to the slope of BS. Okay, and I can definitely evaluate the slopes using the 2-point formula. तो AS का slope हो जाएगा 2a t1. Okay, so मैं slope का formula लिख लेता हूँ for 2 point. So this is another concept that we are applying. Focal chord is simply chord passing through focus. Okay, so I'll use these results to my advantage. Okay, and I'll try to derive the result, although you might remember the results as well if you have prepared really in an amazing way, then आप लोगों को results भी याद होंगे. पर अगर नहीं पता है तो कोई बहुत ही मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है इस रिजल्ट को प्रूव करना, पर ना ही हो चाहे याद तो कोई बहुत ही बड़ा इशू नहीं. ठीक है, तो वी गेट ए से ए कैंसिल, यहाँ पर भी ए से ए कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमें क्या मिल गया, t1 अपॉन t1 स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू t2 अपॉन t2 स्क्वायर माइनस 1. ठीक है,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, T1 T2 स्क्वायर माइनस T1 इज इक्वल टू T2 T1 स्क्वायर माइनस T2। तो यहाँ से हम T1 T2 वाले T1 T2 स्क्वायर माइनस T2 T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 माइनस T2 लिख लेते हैं और T1 T2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से बनेगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T1 माइनस T2। अब T1 माइनस T2 इज नेगेटिव ऑफ दिस, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बचेगा -1। तो इससे हमारे पास आ जाती है कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड इज T1 T2 इक्वल टू -1। So my A part, this was only A part, so this A part matches with Q. So I'll write A matches to. Okay, great. So we have this result in our hand. Now next result that we can apply. So for solving this problem, we have to apply this result again. So let me just copy this to the next slide so that we don't need to move around here and there. So for this moment, till this moment, I have found that this thing is A matches with. Okay, now I'll continue further. I have a parabola. I'll draw it again. So okay, so I have this parabola and इस पे मैंने अब वापस तो मैं इस पे अब ओ ये हमने बना दिया इस पे पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और यहाँ पर है हमारे पास a_t1 स्क्वायर कॉमा 2a_t1। I'll mention this as point A। हमारे पास एक पॉइंट B है a_t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2। हमें नहीं पता इसकी ज्योमेट्री कैसी है, तो हम अज्यूम कर रहे हैं और ये हमने इसकी फोकल मतलब इसकी एक AB लाइन को जोड़ दिया। So my second question asks me that what will be the relation between T1 and T2 so that this slope is equal to pi by 4. So I will try to apply this in that. Okay, so I have to find a condition so that the slope becomes pi by 4. Okay, तो मैं इसको करने वाला हूँ। देखो ध्यान से देखना, स्लोप का वैल्यू क्या होता है, tan of theta, where theta is pi by 4। तो इसका मतलब tan थीटा का वैल्यू है 1, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये तो बहुत ही इजी चीज थी अगेन। तो 2a_t2 माइनस 2a_t1 अपॉन a_t2 स्क्वायर माइनस a_t1 स्क्वायर, इसका वैल्यू कर दो आप 1। तो इससे आप a से a काट सकते हो और हमारे पास बचेगा 2t2 माइनस 2t1 इक्वल टू a_t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। तो यहाँ से हम अब t1 वाली टर्म्स एक साइड ले जाते हैं या हम सारी टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं। तो let us take all the terms to single side and let's try to analyze what will be our result. So this will be t2 square minus 2t2, okay, minus t1 square minus 2t1 is equal to 0। ठीक है, तो अगर हम t2 माइनस t1 टाइम्स ऑफ t2 प्लस t1 लिखते हैं, इसको इन दोनों को क्लब करके और यहाँ -2 कॉमन लेके t2 माइनस t2 प्लस t1 लिख दें तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। तो t2 माइनस t1 -2 ब्रैकेट में और t2 प्लस t1 इसका वैल्यू होगा 0। So let's see if we have a condition like this. Okay, so we don't have a condition like this, so perhaps I have made some mistakes. So let's check where I have made a mistake actually. So 2 times of t2 minus t1 is equal to t2 square minus t1 square। यहाँ तक तो सब सही है, ये स्लोप ऑफ AB भी सही निकाला है, तो गड़बड़ कहाँ है ये? ओके, एक साइन का गड़बड़ है, यहाँ पर ये प्लस होगा तभी गड़बड़ हो रहा है और हमें अब थोड़ा सा कट पेस्ट करना पड़ेगा।
हमें यहाँ से देखने, देखो वो साइन का गलती हो गया है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ये आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस 2D2 माइनस T1 स्क्वायर प्लस 2T1। ठीक है, तो ये आ जाएगा T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ T2 माइनस T1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा T2 माइनस T1 कॉमन, यहाँ से आ जाएगा T2 प्लस T1 माइनस 2, इसका वैल्यू आ जाएगा 0। तो चेक करते हैं हमारे पास कोई आंसर है। ऑफ कोर्स यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। अगर देखो दो कंडीशन है, अगर T2 का वैल्यू T1 हो जाए, ये कंडीशंस कब आएंगी? पहली कंडीशन, या इसको x लिख लो, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट व्हेन T2 इज इक्वल टू T1। बट हमें बताया गया है कि हमारे पास पैराबोला में 2 पॉइंट्स हैं, पर जब T2 इक्वल टू T1 हो जाएगा तो वो सिंगल पॉइंट रह जाएगा, तो ये सिंगल पॉइंट हो जाएगा, तो इसीलिए ये कंडीशन हम रिजेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि हमने ये कंडीशन रिजेक्ट कर दी, सो वी हैव ओनली this condition left, that T2 plus T1 is equal to 2. So we have an answer with us, and that B matches with S. Okay, A matches with Q, B matches with S. We are very happy seeing this, and we can move to the next part, that is the C part. So let's think how we can proceed with the C part. Just a minute. Okay, let's see. I think anyways, we won't waste time on such thing. Yeah, these things are actually, I'm sorry because of the interruption caused over here. Let's think of the C part. So we are having the parabola. I perhaps could have copied the parabola, but yes, that would again take a lot of time. So we have this parabola, y square is equal to 4x. अब इस पैराबोला पे हमारे पास A पॉइंट है 81 स्क्वायर कॉमा 281, और B पॉइंट है 82 स्क्वायर कॉमा 282। हमें कहा गया है, व्हाट आर वी टोल्ड? वी आर टोल्ड कि ये ओरिजिन पे राइट एंगल दिखाते हैं। तो अगर यहाँ से हम ये लाइन जोड़े, ये सेगमेंट जोड़े और ये सेगमेंट जोड़े, तो ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री। तो अगेन इसमें भी वही स्लोप का कॉन्सेप्ट लगा लो कि अगर इसका स्लोप है m1 और दूसरी लाइन का स्लोप है m2, तो m1 टाइम्स ऑफ m2 हैज टू बी इक्वल टू -1। वंस आई रीच टू दिस रिजल्ट, आई एम डन। तो इसमें क्या करना है, देखो इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 टाइम्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू -1। तो अब तो ये चीजें बहुत डायरेक्ट हो गई, ये कैंसिल कर देंगे सारे, 0 से तो फर्क नहीं पड़ रहा, और T1 से एक T1 कैंसिल और T2 से एक T2 कैंसिल। सो T1 T2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा -4। यहाँ पर हमारा थोड़ा पच हो गया, तो इसको मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ वापस। तो हमने क्या, यहाँ पर इसकी दूसरी इक्वेशन आ जाएगी T282 माइनस 182 स्क्वायर माइनस 0। तो हम इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं और ए से ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो T1 T2 का वैल्यू आ जाएगा -4। सो सी का मैचेस विद E। ओके, ए मैचेस विद Q, B मैचेस विद S, C मैचेस विद P। अब ये सिंगल मैट्रिक्स है, तो ये मतलब काफी सिंपल है, और डबल मैट्रिक्स में थोड़ा और मेहनत लगती है, बट वी विल डिस्कस डबल मैट्रिक्स एज वेल। So let us do that in some other video, not today of course. Okay, so perhaps we can start. क्या हो रहा है, मुझे मतलब कई बार डाउट होने लग जाता है। Okay, so we have this, and what we are supposed to do now, हमारे पास अगेन वही पैराबोला है, और उसी पैराबोला के लिए
हमें आगे एनालिसिस करना है। सो दिस इज अगेन अ सिंपल थिंग। हमारे पास है ये 81 स्क्वायर कॉमा 82 स्क्वायर कॉमा 282, सेकेंड पॉइंट ऑन पैराबोला, और फर्स्ट पॉइंट ऑन पैराबोला 81 स्क्वायर कॉमा 281। अच्छा, हमें ए बी इज नॉर्मल टू पी एट पॉइंट ए। यहाँ पर हमारे पास ए पॉइंट है, यहाँ से ये पैराबोला पे नॉर्मल होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर जो मैंने पॉइंट बनाया वो एक्चुअल में यहाँ कहीं होगा। So I'll erase this point from over here and I'll make this point, I'll mention that this is my V point, ठीक है, क्योंकि just for geometric concerns, although I'm not interested in that, but yes, just for the sake of completion, okay। तो यहाँ पर हमारे पास अब AB क्या है? AB है हमारे पास एक नॉर्मल, और नॉर्मल लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना प्रेफर करोगे आप? देखो, आपके पास क्या कंडीशन है कि ये नॉर्मल है, आप करो ए पॉइंट पे आप निकाल लो टेंजेंट, क्योंकि किसी भी कर्व के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जैसा कर्व के लिए आप टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हो, y1 इज इक्वल टू 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1, ठीक है। ये हमारा एक होता है टेंजेंट लिखने का तरीका, टेंजेंट का इक्वेशन टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एट पॉइंट x1, y1, ठीक है। तो हमें पता है कि ये ए पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल भी तो ए से है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो इससे हम ये इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर मेरा y1 है 281 और 2a टाइम्स ऑफ x प्लस x1 क्या है 81, तो 8 ये और ये हो गए कैंसिल। तो अब हमारे पास इसका स्लोप क्या बचा, 1/t1 टाइम्स ऑफ x प्लस 81 स्क्वायर, ये हमारी होगी टेंजेंट की इक्वेशन एट पॉइंट ए, एट ए, ओके। नाउ मेरे नॉर्मल लाइन की अगर मेरे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है 1/t, तो उसके परपेंडिकुलर लाइन होगी नॉर्मल। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन है मतलब इस लाइन का स्लोप है 1/t1, तो इस लाइन का नॉर्मल का स्लोप कितना होगा, -t1, ओके। तो अब हमारे पास -t1 इसका वैल्यू आएगा नॉर्मल का, और हमारे पास 2 पॉइंट पता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है हमें, 2 पॉइंट पता है नॉर्मल के, तो हम दोनों चीजों को, दोनों पैरामीटर्स को वी कैन इक्वेट। So I'm just going to do that. So I have 2a t2 minus 2a t1 अपॉन 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर। तो इसमें क्या किया है हमने, बहुत ही सिंपली नॉर्मल लाइन का स्लोप लिखा है, और इसका स्लोप का वैल्यू है -t1। अब तो बस इसे कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो a कॉमन लेके कैंसिल कर लेते हैं, और 2 कॉमन लेके t2 माइनस t1 अपॉन t2 माइनस t1 टाइम्स ऑफ t2 प्लस t1 इक्वल टू -t1, ये और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। तो ये बन जाएगा 2 इज इक्वल टू -t1 t2 माइनस t1 स्क्वायर, और t1 स्क्वायर प्लस t1 t2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर होता है। तो लेट्स सी, वी हैव एन आंसर, यस, आर इज द आंसर फॉर डी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड आई विल जस्ट मैच all of this, so the final answer, so I'll write the final answer over here. I'll write the final answer. So final answer, so my A matches with Q, my B matches with S, I guess. Let me check. So that B matches with S, yes, right. C matches with P, and D matches with R. So my correct answer to this problem is QSPR. So this was a problem from matrix match type. I hope you guys liked this video, and if you like this video, do subscribe to our channel Ace JEE for more such videos. So thank you everyone for watching this video. Make sure to hit the like button. Bye.